So we are on our next chapter from today. Up to the points, various topics which we have discussed is that for an agreement to become a contract, there must be certain essential elements. Out of that, the essential elements we have discussed is that the offer must be certain, specific, clear. Then number two, acceptance must be absolute and unqualified. Number three, there must be a consideration for the creation of the contract. Without consideration, an agreement will become void. Then number four, we have discussed is that for the creation of a valid contract, the parties must be capable of making the contract as per section 11 of the Indian Contract Act. That means they must be major, they must be sound mind, and they must not be disqualified from making the contract as per the law to which they are subject. Then up to the yesterday, the last topic we have finished is that for the creation of a valid contract, there must be free consent of the parties. Now, free consent of the parties must be as per section 14. It should not be caused by coercion, physical force. It should not be caused by the undue influence, moral force. Then number three, it should not have been caused by the fraud, that is intentional false statement. Number four, section 18, it should not have been caused by misrepresentation, that is innocent false statement, and the consent should not have been taken under the mistake, that is erroneous belief about something. So the last essential element for the creation of valid contract, which we have discussed, that last essential element was we have discussed free consent. Parties must give their free consent for the creation of the valid contract. And now today the topic we are going to start, this topic is legality of the object and consideration. The topic today we are going to start is the legality of the object or consideration. Now देखो क्या आ जाता है यहाँ पे, for the creation of a valid contract, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक 20-year person और एक 25-year person मिला के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. Now that contract is that one, that this 25-year person is going to sell the brown sugar to this 20-year person. Now for that they have decided that the 20-year person, Mr. A, say for example, has agreed to give rupees 50,000 to Mr. B, who is going to give the brown sugar. Now up to the point whatever we have discussed, okay, offer is there, acceptance is there, offer is very clear, acceptance is also very clear. Both the parties are capable of making contract because they are 20-25 means they are major, and at the same time see they are even what we can say that sound mind, they are not disqualified by law. And even they have decided the amount of the consideration also. For A, consideration is 50,000 rupees, for B, consideration is a brown sugar. That means there is a consideration also. And the last point we have discussed is that by their own free will, they have decided they are going to do this particular contract. Okay, so up to the point whatever essential elements we have discussed, all these essential elements are present here. All essential elements are present here. Say for example, offer is there, acceptance is there, consideration is there, free consent is there, and capacity to contract is also there. But still you ask to your own common sense that whether agreeing to sell the brown sugar to be, is it a valid contract? Your own common sense, okay, forget the law and forget the law provisions etc. Just ask to your common sense कि किसी को ब्राउन शुगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ये ब्राउन शुगर मतलब ध्यान में आना आपको, वो चरस गांजा वगैरह टाइप का एक टाइप है, ड्रग है जिससे नशा होती है वहां पे. तो क्या किसी को ब्राउन शुगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड हो सकता है क्या? देखो एक कोई भी कॉमन इंसान भी बोलेगा कि नहीं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भले ही यहाँ पे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. Why this contract is not valid? Ask. This contract is not valid because the object of this particular contract or a consideration of this particular contract is not valid. जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो पर्पस भी इक्वली वैलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पर्पस भी वैलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही
इनवैलिड है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही अनलॉफुल है, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही कैसा है, अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि वेरी पर्पस है उसका बेसिकली क्या है वहां पे रॉन्ग है। हाँ, अब आपको थोड़ा सा समझ में लेना है बिफोर गोइंग इनटू द मॉड्यूल। हाँ, there are 6 circumstances when the object or consideration of a contract is not lawful. Huh? Getting what I'm saying to you? There are 6 circumstances when the object or consideration of contract is not lawful. हाँ, तो कब कब अनलॉफुल होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। वन बाय वन आपको डिटेल देते जाऊंगी, बट अभी हमें थोड़ा सा बेसिक समझ के लेना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, देखो, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2, if it is of such a nature, if permitted, it defeat the provision of the law. उसका नेचर ऐसा है कि उसको अगर परमिट करते हो तो वहां पे लॉ डिफीट हो जाता है। नंबर 3, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही फ्रॉडुलेंट है तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। नंबर 3, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट। हाँ, नाउ नंबर 4, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा है कि किसी के प्रॉपर्टी या बॉडी को वो हर्ट करने वाला है, इंजुरी कॉज करने वाला है। सो हेडिंग ऑफ नंबर 4 इज दैट वन, if it involve the injury to the person or the property of another. Then number 5, if it court regard it as immoral, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको कोर्ट खुद ही कंसिडर करता है कि ये इमोरल है। And the last one, if the object of your contract is opposed to public policy, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कैसा बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो भी वो क्या हो जाएगा, void या unlawful consider किया जाएगा। So what are that 6 circumstances? If it is forbidden by law, if permitted it defeat the provision of law, if it is fraudulent, if it involve the injury to the property or person of another, if it is immoral, and if it is opposed to the public policy. हाँ, अभी मैं आपको इसके अंदर डिटेल में जाऊंगी, बट 1 मिनट के लिए पहले ये समझ के लो कि जो लास्ट 6th पॉइंट है ना, if it is opposed to the public policy, there are 6 circumstances when the object or consideration of the contract become unlawful. जो अभी अभी आपको 6 circumstances मैंने बताए, उसमें जो लास्ट circumstance है ना, if it is opposed to the public policy, वो लास्ट circumstance जो है ना, वो include itself another 9 सब पॉइंट, उसके अंदर 9 सब पॉइंट्स आते हैं, इसलिए ये टॉपिक कंपैरेटिवली वैसे बड़ा है। हाँ, ध्यान में रहे, पहले ये 6 पॉइंट डिस्कस करने हैं और फिर उसके बाद में जो 6th पॉइंट है ना, उस 6 पॉइंट के अंदर हमें वापस 9 सब पॉइंट्स क्या करने, डिस्कस करने। There are 6 circumstances when the object and consideration of contract is unlawful, and out of that जो 6th वाली circumstance है opposed to the public policy, उसमें वापस 9 पॉइंट्स दिए हुए सब पॉइंट्स। हाँ, जिसमें वापस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। हाँ, हमें जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करोगे तब रीजनिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हाँ, अभी आपको जस्ट मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का। हाँ, अभी हम लोग क्या होता है इस पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, लेट मी नो इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, क्या ये दो चीजें सेम है क्या? गेटिंग द पॉइंट, द क्वेश्चन आई आस्क्ड यू इज दैट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज legality of object and consideration. Okay, legality of the object and consideration. तो of course क्वेश्चन मार्क पहले अराइज होता है कि क्या ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों चीजें सेम है? नाउ नो, आंसर इज नो। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये चीजें अलग अलग है। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पे। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट से आप जो रिटर्न ले रहे हो ना, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करके सामने वाले पार्टी से समथिंग इन रिटर्न जो आप ले रहे हो, वो समथिंग इन रिटर्न स्टैंड्स फॉर द कंसिडरेशन। We'll take out 2 examples for here, to see कि what is object and what is consideration. हाँ, definition wise तो आपको ध्यान में आ गया, ऑब्जेक्ट मतलब क्या कंसिडर किया हमने, ऑब्जेक्ट मतलब द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या कंसिडर किया हमने, ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। हाँ, एंड सेकेंड पॉइंट ध्यान में आ गया आपको,
कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में जो हम लोग मांग रहे हैं, दैट समथिंग इन रिटर्न मतलब क्या कंसिडर किया हमने, दैट इज कंसिडर्ड एज अ consideration. We'll take out two examples for understanding object and consideration. Did you remember we have taken out one illustration many days back? There was three thief are there. हाँ, तीन चोर है. उन तीनों चोरों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि तीनों दिन भर चोरी करेंगे या लोगों को टोपी चढ़ाएंगे या फंसाएंगे, whatever it may be. हाँ, और उससे जो भी वो अर्न करेंगे वो शाम को आके तीनों एक दूसरे के साथ में बांट के ले लेंगे. ओके, नाउ सी हियर. हाँ, द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताओ यहाँ पे. द वेरी पर्पस, वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि लोगों को ठगना, लोगों को फंसाना, चोरी करना. हाँ, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या अनलॉफुल है बोलो, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, क्योंकि आप किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोगों को ठगने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही क्या है बोलो यहाँ पे, अनलॉफुल है. हाँ, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा यहाँ पे. हाँ, नाउ वी विल टेक आउट वन एग्जांपल which will show you कि कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन कैसे अनलॉफुल हो सकता है. वी विल टेक आउट वन एग्जांपल which will show you कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल कैसे हो सकता है. देखो, ए ने हाँ प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलवा के दे देगा. ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलवा के दे देगा, और उसके बदले में बी ने ए को प्रॉमिस किया कि वो उसको 1 लाख रुपए दे देगा. गेटिंग द पॉइंट. ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया कि ही विल मेक अरेंजमेंट फॉर हिम ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब उसको मिला के दे देगा वो. हाँ, वहां पे. और उसके बदले में वो जो बी है, वो बी क्या प्रॉमिस कर रहा है उसको कि वो उसको 1 लाख रुपए दे देगा. हाँ, अभी देखो, पैसे के बदले में गवर्नमेंट जॉब मिलवा के देना. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पैसे के बदले में गवर्नमेंट जॉब मिलवा के देना. हाँ, तो यहाँ पे जो वो गवर्नमेंट जॉब मिलवा के देना, हाँ, ये क्या है बोलो, अनलॉफुल कंसिडरेशन है. क्योंकि किसी भी जॉब का बेस क्या हो सकता है, उस पार्टी की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. हाँ, उसकी उस पोस्ट को होने वाली क्वालिफिकेशन, ये क्या हो सकती है बोलो वहां पे, उस जॉब का बेस हो सकती है. उस जॉब का बेस कभी पैसा नहीं हो सकता. तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है ना, हाँ, कि गवर्नमेंट जॉब मिलवा के देता हूँ, ये कंसिडरेशन ही क्या बोलो, अनलॉफुल है. हाँ, सो इसका मतलब, बट बी क्लियर है, हमें कहीं पे भी पेपर में ये अलग अलग से नहीं पूछेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या इसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है. बट बीइंग स्टडीइंग द लॉ, it is necessary that you should have awareness about the difference between these two terms. Okay, so object मतलब very purpose of that contract. हाँ, and opposite side consideration मतलब out of that contract what we get in return, that something in return is considered as a क्या consider किया गया उसको consideration consider किया गया. So back to the point again. हाँ, what the law says that the object or consideration of the contract कैसा होना चाहिए, वहां पे लॉफुल होना जरूरी है. हाँ, हम लोग थोड़ा सा उस 6 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने के पहले जो मैंने आपको ओरली बताया वो मॉड्यूल लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग अंदर जाते हैं वहां पे. हाँ, नाउ देखो, इन ऑल दिस 6 केसेस, हाँ, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या हो जाएगा, अनलॉफुल. वो जो ऊपर के 6 केसेस आपको अभी भी बताया ना, फॉरबिडन बाय लॉ है तो, if permitted defeats the law provision है तो, हाँ, then number 3 fraudulent है तो, number 4 पर्सन या बॉडी को इंजुरी करता है तो, number 5 immoral है तो, number 6 अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है तो. हाँ, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट का या तो ऑब्जेक्ट या तो कंसिडरेशन कैसा होगा बोलो, अनलॉफुल वहां पे हो जाएगा. हाँ, और अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है. हाँ, let's see some examples given in the module. Huh? Number 1 example which we have just now seen, A, B, C, huh? 3 people enter into an agreement for the division among themselves of the gains acquired or to be acquired by the fraud. हाँ, दिन भर फ्रॉड करना है और फ्रॉड का जो भी गेन्स एक्वायर होगा वो गेन वो एक दूसरे के बीच में क्या करके लेने वाले, डिवाइड करके लेने वाले हैं. तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड, बिकॉज एक्विजिशन ऑफ गेन बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल. उनका जो पर्पस ही है ना कॉन्ट्रैक्ट का, एक्विजिशन ऑफ गेन्स बाय फ्रॉड,
ये पर्पस ही कैसे बोलो, ऑब्जेक्ट ही कैसे बोलो अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void contract हो जाएगा. हाँ, then number 2 example is that one. If you remember, except 1 or 2 people, all other people were there. Huh? I have told you that our Indian Penal Code 1860 includes the various definitions of the crime and the punishment for that. हाँ, IPC के अंदर अलग अलग crime की definition और उसकी punishment दी है. Generally crime एक बार होने के बाद जब उसका कोर्ट में केस फाइल होता है, जिसे हम लोग प्रोसिक्यूशन फाइल करना बोलते हैं, तो इन जनरल प्रोसेस यही होता है कि कोर्ट वो केस प्रॉपरली पूरा हियर करेगा और पूरे हियरिंग के बाद ही उस केस का डिसीजन देगा. जनरली एक बार फाइल किया गया प्रोसिक्यूशन, सामने वाला कुछ आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपके पैसे दे दूंगा, या मुझसे जिसका मर्डर हुआ है उसके फैमिली को मैं 5 लाख दे दूंगा, केस पीछे ले लो, ऐसे जनरली नहीं होता है. और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करने का प्रॉमिस किया है, दबाने का प्रॉमिस किया है, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है, प्रोसिक्यूशन को स्टिफल करना. स्टिफल करना मतलब दबाना उस केस को. हाँ, तो बेसिक ऑब्जेक्ट ही क्या हो जाएगा बोलो, वहां पे वॉइड हो जाएगा. इसलिए हाँ, उसका रीजन क्या होगा, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल विल बी द रीजन. लेकिन तभी मैंने आपको ये भी बताया था, जो कि हमें इमीडिएटली 5-10 मिनट में आने वाला ही है. There are 2 types of the offenses in the criminal procedure code, that are compoundable and non-compoundable offenses. Now, what this stands for, compoundable and non-compoundable offenses? Compoundable offenses means which are compromisable, जिसमें ना पब्लिक इंजुरी इन्वॉल्व नहीं है. हाँ, ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं ना, उसको कंपाउंडेबल के लिस्ट में दिया गया है. मतलब कोर्ट के परमिशन से या कोर्ट के परमिशन के बिना आप उनको कंपाउंड कर सकते हो. कंपाउंड कर सकते हो मतलब क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. और जो ऑफेंसेस में जनरली पब्लिक इंजुरी इन्वॉल्व होती है, हाँ, मतलब क्राइम हुआ भले एक के साथ है, लेकिन पूरी जनता वहां पे खुद को देखती है, पब्लिक रॉन्ग है ना, तब वहां पे वो ऑफेंसेस कौन से लिस्ट में से जाता है, नॉन कंपाउंडेबल. नॉन कंपाउंडेबल स्टैंड्स फॉर नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता नहीं है. तो आप ये दिमाग में डाल के रखो या नोट डाउन करके रखो वहां पे कहीं पे, कि कौन से क्राइम या ऑफेंसेस का जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्टिफल किया जा सकता है. जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है ना, yes, we can compromise outside the court because it is provided by the law itself. It is permitted by the law itself. तो ऐसे ऑफेंसेस का क्या हो सकता है बोलो, कंपाउंडिंग हो सकता है. लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, सीरियस ऑफेंसेस है, जिसमें पब्लिक इंजुरी इन्वॉल्व है, उसका कंपाउंडिंग हो सकता नहीं, वो कोर्ट के बाहर सेटल नहीं किए जा सकते. और अगर ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को स्टिफल करने का आप एग्रीमेंट करते हो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कैसा बोलो, अनलॉफुल है. इसीलिए हाँ, नाउ यू मे आस्क मी कि हमें कैसे पता चलेगा पेपर में पूछने के बाद कि कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा है. जस्ट आपको मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया. आपके मॉड्यूल में जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल से रिलेटेड ही पूछते हैं. तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वही याद रखना है कि अगर प्रोसिक्यूशन को दबाने की कोशिश की है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, क्योंकि वो स्टिफलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्ट है. स्टिफल मतलब दबाना, किसी केस को कोर्ट में ना चलते देते हुए उसको पैसे ऐसे देके या कोई रिटर्न चीज देके कोर्ट के बाहर उसको रफा दफा करने की कोशिश करना, that is considered as the stifling of the prosecution. Now section 10 provide legality of the object or consideration. section 23 हमारा मेन सेक्शन जो है यहाँ पे, वो सेक्शन कौन सा होगा याद रखो. You have to remember this section 23 कि every agreement of which the object or consideration is unlawful is a void. section 23 very clearly बताता है कि जिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड वहां पे हो जाएगा. फिर ना हमारे मॉड्यूल में रिटर्न वही एग्जांपल दिया हुआ है वापस. कौन सा एग्जांपल, A obtain employment for the B in a public service and B promises to pay in return rupees 1 lakh. Now the agreement is a void. रीजन देना है आपको यहाँ पे
क्या रीजन है बोलो, इसका जो कंसिडरेशन है गवर्नमेंट जॉब देने का प्रॉमिस था वही अनलॉफुल है. Here, A's promise to procure for the B an employment in the public service is a consideration, but the B's promise to pay rupees 1 lakh and this consideration opposed to public policy है, unlawful है, हाँ, consider किया गया वहाँ पे. तो now that 6 point we are supposed to see in detail, हाँ, कि when the object or consideration is said to be unlawful. Object या consideration कब कब unlawful होगा, उसके जो 6 points है, वो 6 points क्या करने हैं हमें यहाँ पे अभी in detail discuss करने हैं, हाँ. Now, while dealing with that particular 6 point in detail, the very first point we are going to see is that one, if it is forbidden by law, is the very first point. So the very first point we are going to deal is when the object or consideration of the contract is forbidden by law. Huh? Now you will ask what is meant by this word forbidden. वैसे तो पीछे में गया हुआ है ये वर्ड, हाँ, तो आप जानते हो forbidden मतलब prohibited. हाँ, जिस कॉन्ट्रैक्ट को करने से लॉ ने खुद ही प्रोहिबिट किया है ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कैसा नहीं है बोलो, लॉफुल नहीं है वहां पे. हाँ, so the point is that one, acts forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as prohibited by regulations or orders made in the exercise of the authority conferred by the legislature. हाँ, देखो क्या क्या पॉइंट्स आ गए यहाँ पे. When consideration or object is forbidden by law, और कब उसको forbidden by law बोलना है बोलो वहां पे. Number one, if they are punishable by law, if they are punishable by the statute, if they are prohibited by the regulations or orders, which are conferred by the legislature. Legislature मतलब आप जानते हो लॉ मेकिंग बॉडी को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर कंसिडर किया जाता है वहां पे. हाँ, हमारे देश के लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए लेजिस्लेचर फॉर द इंडिया, एंड फॉर अ स्टेट who is a legislature, state legislature is considered as a legislature. So legislature मतलब कौन है, लॉ मेकिंग बॉडी. तो लॉ मेकिंग बॉडी ने बनाए हुए, हाँ, कोई भी रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, हाँ, या फिर स्टैट्यूट. हाँ, यू मे आस्क व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड स्टैट्यूट. नाउ स्टैट्यूट मतलब जब पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है ना, तो वो एक्ट क्या बन जाता है, स्टैट्यूट बन जाता है. हाँ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्ड मीनिंग, स्टैट्यूट. पार्लियामेंट जब कोई एक्ट बनाती है तो वो एक्ट क्या बन जाता है, स्टैट्यूट बन जाता है वहां पे. तो अगर आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशंस है, प्रोहिबिटेड बाय स्टैट्यूट है, प्रोहिबिटेड बाय ऑर्डर है, जो किसने बनाया हुआ है, लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ है, तो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा आपको. हाँ, नाउ विल सी वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन द मॉड्यूल. हाँ, एग्जांपल देखते हैं जो मॉड्यूल में दिया वहां पे. हाँ, a license to cut a grass is given to X. A license to cut a grass is given to X by Forest Department under Forest Act. ध्यान में रहे, A को ग्रास कट करने का लाइसेंस फॉरेस्ट एक्ट के नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है. Got the point? One of the term of the license is that licensee should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer, or a fine is prescribed for the breach of condition. हाँ, one of the condition of the act नहीं है, ध्यान में रखो. हाँ, one of the condition of the license, हाँ, क्या थी कि अगर ये लाइसेंस जिसको दिया है वो लाइसेंसी, उसको अगर अपना लाइसेंस किसी और को असाइन करना है, लाइक ट्रांसफर करना है, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिशन के बिना वो लाइसेंस असाइन नहीं कर सकता, और अगर वो इस कंडीशन का ब्रीच करता है तो उसको फाइन इम्पोज किया जाएगा. हाँ, नाउ but the observance of condition of the license is not obligatory under the forest act. समझ के लो फर्क कैसे. ये कंडीशन किसने लगाई हुई है, लाइसेंस पे लिखी हुई है, इसका मतलब ये कंडीशन किसने लगाई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई हुई कंडीशन है. फॉरेस्ट एक्ट नहीं बताता ये कंडीशन. Getting what I'm saying to you, that this condition is not imposed by the legislature. लॉ मेकिंग बॉडी ने नहीं लगाई है, ये कंडीशन लगाई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने
एक्ट में कहीं पे ये कंडीशन थी नहीं, हाँ. बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडीशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, हाँ. इफ ए इन द ब्रीच ऑफ कंडीशन, ए ने क्या कर दिया, देखो अगर इस कंडीशन को उसने ब्रीच कर दिया, समझो ए ने, हाँ, और कंडीशन को ब्रीच करते हुए उसने क्या किया वहां पे, he assigns his interest under the license to the B, तो मेजॉरिटी सर्कमस्टेंसेस में आंसर आएगा कि ये एग्रीमेंट वॉइड है. बट नो, याद रखो एग्रीमेंट क्या है, बोलो वैलिड है, हाँ. वैलिड व्हाई? बिकॉज वो जो भी उसने किया असाइनमेंट, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना. गेटिंग द पॉइंट. फॉरेस्ट एक्ट बोल रहा था क्या यहाँ पे ऐसे कि आप असाइन नहीं कर सकते हो? नहीं. द कंडीशन इज अगेंस्ट द असाइनमेंट हैज बीन इम्पोज्ड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड फॉर रेवेन्यू पर्पस ओनली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कंडीशन क्यों लगाई थी, बोलो? उनका रेवेन्यू बढ़ जाए इसलिए, हाँ. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये कंडीशन अपने बेनिफिट के लिए लगाई थी, जो कि एक्ट में नहीं थी. एक्ट में नहीं थी मतलब लॉ में नहीं थी. इसका मतलब वो कंडीशन बाइंडिंग नहीं है. तो इसकी वजह से नंबर 1 पॉइंट के अंदर अगर आपका लेजिस्लेचर ने बनाया हुआ लॉ, हाँ, क्या होता है वहां पे, वायलेट होता है, हाँ. कोई स्टैट्यूट वायलेट करते हो या कोई कंडीशन रेगुलेशन जो लेजिस्लेचर ने बनाई है उसको अगर आप वायलेट करते हो, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो? वॉइड हो जाएगा.